हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर कैफे। आज के वीडियो में हम देखेंगे लिनक्स की बेसिक कमांड्स दैट यू मस्ट नो व्हेन यू आर बिगिनिंग योर एथिकल हैकिंग जर्नी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी तक काली लिनक्स इंस्टॉल नहीं किया है तो मेरी इस वीडियो का लिंक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्लीज़ वॉच इट। और यहाँ मैंने लॉगिन कर लिया है अपनी काली लिनक्स मशीन में और अब देखते हैं इसका टर्मिनल जहाँ हम कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे। लिनक्स टर्मिनल में आपको सबसे पहले दिखाई देगा उसका प्रॉम्प्ट। हर प्रॉम्प्ट में होता है आपका यूज़र नेम जिससे आपने लॉगिन किया है, आपकी मशीन का होस्ट नेम और आपकी यूज़र की करंट वर्किंग डायरेक्टरी। और आपको दिखाई देगा एक डॉलर सिंबल जिसका मतलब है कि टर्मिनल कमांड लेने के लिए रेडी है। अगर आप रूट यूज़र से लॉग्ड इन हैं तो डॉलर की प्लेस पे आपको हैश सिंबल दिखाई देगा। अब रन करते हैं अपनी फर्स्ट कमांड दैट इज whoami। दिस विल शो योर यूज़र नेम, इन माई केस इट इज़ साइबर कैफे। Next command is hostname, which will show your machine's hostname. Here it is Kali, and third command is pwd, which is print working directory. So we are currently in home directory of CyberCafe, and this tilde will always refer to your home directory of the user you are logged in. So using these three commands, you can verify your username, hostname, and your current working directory. Our next command is echo, which can be used to print and display output onto the terminal. So if we write echo welcome to CyberCafe and press enter, you can see the same thing displayed on the terminal. At any time if you wish to clear your screen, you can use the command clear. अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी के कंटेंट्स जैसे कि फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज चेक करनी है, so you will use the command ls for listing contents. Here you can see ls कमांड से आपको मेरी करंट डायरेक्टरी के कंटेंट्स दिख रहे हैं, which is home of CyberCafe. अगर आपको करंट डायरेक्टरी के अलावा किसी और डायरेक्टरी के कंटेंट चेक करने हैं तो ls के आगे उस डायरेक्टरी का पाथ दे सकते हैं। यही सेम इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए मैं अपने फाइल सिस्टम में जाऊंगा एंड देन आई विल गो टू होम ऑफ CyberCafe एंड यू कैन सी दैट सेम कंटेंट्स आर आल्सो शोइंग हियर। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन। लेट्स कंटिन्यू। We can use many of these commands with switches, which I will show you in later part of this video when we will discuss about manual pages. For example, you can use -l or -l to see long listing of your directory contents. As you can see, the long listing is showing a lot of information about the file contents. Here, first 10 characters will show the file type and its permissions, followed by the number of files. Then this is the owner of the file and the group name, the size, the date modified, and the file or directory name. You will see more on file permissions in my upcoming videos. Next command is cd, which is used for changing the current working directory. So if I type cd desktop, it will change the current working directory to desktop. You can use the command pwd to check that we are in the desktop of our user. अब हम लिस्ट करेंगे डेस्कटॉप के कंटेंट्स and you can see terminal is showing only one directory named files, also visible on my desktop here. The other icons are default and will not be visible on terminal. Similarly, अगर आपको अपनी current working directory से एक level अप आना है, you can use cd dot dot. Now by doing this, you have come out of desktop into the home directory of user, which is tilde. And you can check the same by using the command pwd. So now you are in home of CyberCafe. You can do an ls and you can see the contents of home directory of CyberCafe, and same thing can be viewed from the file system. So here you are in home of CyberCafe. Now we'll go one directory up, cd dot dot, और हम CyberCafe से एक लेवल अप आ गए हैं होम फोल्डर में। Now type cd dot dot again and you will come out of this home into the root directory of entire Linux file system. So now you can see we are in a folder called /. You can also check it from the file system that we are on the topmost level of directory structure, and अगर आप यहाँ से एक और लेवल अप जाने का ट्राई करोगे तो आप नहीं जा पाओगे। Now you can try doing a pwd and you can see that you are in a folder called /. And if you try doing one more cd dot dot, आप देखोगे कि you are still in the folder called /. तो अब तक आप समझ गए होंगे कि फोल्डर / जो है वो इसका रूट डायरेक्टरी है और आप यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते। और यहाँ ls करने पर आपको मिलेंगी कई सारी डायरेक्टरीज जिसमें होती हैं लिनक्स कर्नल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, लाइब्रेरीज, एग्जीक्यूटेबल बाइनरीज, बूट फाइल्स, सिस्टम फाइल्स एंड यूज़र बाइनरीज।
इस वीडियो में मैं लिनक्स फाइल सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो बेसिक कमांड्स पर है। अब हम चलते हैं यहाँ से अपने डेस्कटॉप पे और वहाँ पर देखेंगे ऐसी कमांड्स जिनसे हम फाइल्स और डायरेक्टरीज को मॉडिफाई और मैनिपुलेट कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा था कि हम एको कमांड का यूज़ करके किसी भी टेक्स्ट को टर्मिनल पर आउटपुट कर सकते हैं, पर अगर हम उस सेम कमांड के आगे एक रीडायरेक्ट ऑपरेटर जो कि है ग्रेटर देन का साइन, वो उसके आगे अगर हम फाइल नेम दें तो वो टेक्स्ट टर्मिनल पर डिस्प्ले करने की जगह उस फाइल में सेव कर देगा। यहाँ पर हम एको कमांड का यूज़ करके वेलकम टू साइबर कैफे को सेव कर रहे हैं एक welcome.txt नाम की फाइल में डेस्कटॉप पर। तो आप देख सकते हैं कि मेरे डेस्कटॉप पे एक फाइल welcome.txt नाम की सेव हो गई है और इस फाइल को ओपन करके चेक कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट फाइल्स यूजिंग एको कमांड। अगर ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो इसको ओवरराइट कर देगा। वी कैन यूज cat कमांड्स टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ फाइल्स ऑन द टर्मिनल। We should use cat command for viewing small files only, as it will display the contents on the terminal. For viewing large files, we can use different file editors, which we will see in my upcoming videos. Now we can also use cat with the redirect symbol and the file name to create files using command cat. So here we are creating a file welcome1.txt, but the difference between echo and cat is that you can see the prompt will wait for us to write text here, which we need to insert into the file. Give a Ctrl D and it will save the contents to the file. You can see on the desktop we have created a file called welcome1.txt, and also you can use cat command to view that content. So this is the content of the file which we entered, and on the file you can see the same thing. Now if you want to add more content to this existing file, you can use cat with a double greater than symbol. This is called double redirect symbol, and you can give the file name and you can type whatever you want to add. अब मैं टाइप करता हूँ you are learning Linux commands, and I can give an enter if you want to type more, or I can give Ctrl D. And also if you want to append more to this file, you can again write like this is fun to learn, and you can give Ctrl D once again. And now you can do a cat and you can view the content of this file welcome1.txt, and you can see that we have appended you are learning Linux commands, and this is fun to learn in the same file welcome1.txt. And also we can go to this desktop file welcome1.txt and we can view the contents of this file. Next we will see the command mkdir, that is short for make directories. So we can use mkdir followed by the directory name to create new directories. So here we have created a new directory called new on our desktop, and if we do an ls, we can see all these files are present on our desktop. हमारी next command है touch, which we will use to create files. So we will give touch followed by the file name, and it will create a file called welcome2.txt on our desktop. और आप देख सकते हैं कि हमने फाइल welcome2.txt क्रिएट कर दी है डेस्कटॉप पर। अगर आपको फाइल अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं, किसी और फोल्डर में जैसे कि न्यू में क्रिएट करनी है, तो आप टच के आगे अपना पूरा पाथ एंटर कर सकते हैं और वो फाइल उस पाथ पे क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ welcome3.txt नाम की फाइल न्यू फोल्डर में। आपने देखा कि मैंने अभी टच और ls कमांड से पहले पाथ में डॉट का यूज़ किया है। दिस डॉट इज अ शॉर्ट नोटेशन फॉर योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। We have also seen a short notation for home directory of user, that is tilde. अब चलते हैं न्यू फोल्डर में। यहाँ पर फाइल है welcome3.txt। वैसे तो लिनक्स में फाइल नेम करने की कोई डेडिकेटेड कमांड नहीं है, बट उसका वर्क अराउंड अवेलेबल है विद mv कमांड, दैट इज यूज फॉर मूविंग फाइल्स। अगर मैं किसी फाइल को सेम डायरेक्टरी में मूव करूँ विद अ डिफरेंट नेम तो फाइल रीनेम हो जाती है। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। यहाँ पर मैं मूव कर रहा हूँ फाइल welcome3.txt को विद अ डिफरेंट नेम, सपोज welcome4। तो फाइल welcome3.txt रीनेम हो गई है welcome4 में। अब हम देखते हैं कि मूव कमांड का यूज़ करके हम फाइल को डिफरेंट डायरेक्टरीज में कैसे मूव करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल मैं मूव करता हूँ welcome4 को न्यू डायरेक्टरी के बाहर डेस्कटॉप में।
तो आपने देखा कि वेलकम 4 मेरे डेस्कटॉप पे दिख रही है और मूव हो गई है। यहाँ पर मैंने न्यू फोल्डर से मूव किया है डेस्कटॉप में और मैंने यूज़ किया है शॉर्ट रोटेशन // जो कि रिप्रेजेंट करता है न्यू फोल्डर के ऊपर की एक डायरेक्टरी। अब मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप में और यहाँ पर अवेलेबल हैं ये सारी फाइल्स जो मैंने अभी तक क्रिएट की हैं। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड cp विच इज़ यूज फॉर कॉपिंग फाइल्स। यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ ये सारी फाइल्स न्यू फोल्डर में। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर वाइल्ड कार्ड का यूज़ किया है फाइल नेम में। इस वाइल्ड कार्ड से मेरे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं जो कि स्टार्ट हो रही हैं WE से, वो सारी फाइल्स कॉपी हो जाएंगी न्यू फोल्डर में। अब मैं न्यू फोल्डर के कंटेंट्स लिस्ट करता हूँ और देखिए ये चारों फाइल यहाँ पर कॉपी हो गई हैं। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड rm, जिससे हम फाइल्स रिमूव करते हैं। यहाँ पर मैं वाइल्ड कार्ड का यूज़ कर रहा हूँ rm के साथ रिमूव करने के लिए ये सारी फाइल्स। तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप से सारी फाइल्स जो स्टार्ट हो रही हैं W से, वो डिलीट हो गई हैं। बट इसी तरह rm का यूज़ करके हम डायरेक्टरीज को रिमूव नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पर rm के आगे न्यू फोल्डर को रिमूव करना चाहूँगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे rm कमांड विद switch -r and you can see we have removed the directory new from the desktop। एज अ बिगनर आपको नहीं पता होगा कि किस कमांड के साथ कौन से स्विचेस या ऑप्शंस यूज़ करने हैं which will suit your purpose। Don't worry, we can look into inbuilt command manuals using the command man, short for manual। यहाँ हम देख रहे हैं rm is used for remove files or directories and further down अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखेंगे कौन से ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं इसमें। And you can see I used -r for recursive delete, so it will remove directories and their contents recursively। So यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको जो ऑप्शन आपको सूट करता है वो यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से क्विट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं Q। Similarly, we can view the manual of cat by giving man cat and you can see cat stands for concatenate files and print on the standard output what we have seen। और यहाँ पर इसके वेरियस ऑप्शंस एंड स्विचेस जो हम यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ Q to quit। Now we will see one more way of finding help in Linux। Here we have a command uname for printing system information। If we type uname followed by --help, हमें दिखेंगे uname के ऑप्शंस जो हम यूज़ कर सकते हैं instead of reading full manual using man command। You can see that we can use -a for seeing all information about system। So -a। नेक्स्ट कमांड इज़ apropos। इसका यूज़ आता है कि जब हमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमें मैनुअल में सर्च करना होते हैं। सो इफ़ वी सर्च फॉर सिस्टम इंफॉर्मेशन वी कैन सी दैट देयर इज़ अ मैनुअल कॉल्ड uname and if we go to that manual using man uname we can find all about that command। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फाइल परमिशंस, लिनक्स फाइल सिस्टम्स एंड फाइल एडिटर्स के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड अबाउट माई अपकमिंग वीडियोज़।